Second terminology, distortion. It occurs when there is a change in the shape of the signals. This type of the distortion is examined from different signals having different frequencies. Each frequency components has its own propagation speed, so they reach at the different time, which leads to delay distortion. Third terminology is noise. Basically, these terminology is used in whole computer network syllabus. Third category is noise. Noise basically when data is traveled over a transmission medium. Transmission mediums, they have guided or unguided. Some unwanted signal is added to it which creates the noise. And we saw in previous class different units used in the computer network, giga, mega, kilo, deci, centi, milli, etc. And conversion, we saw the conversions. 1 byte equals to 8 bits, 1 kilobyte equals to 1024 bytes, 1 MB megabyte equals to 1024 kbs, and so on. And we saw the difference between the bit rate and baud rate. Firstly, bit rate is transmission of number of bits per second. Transmission of number of bits per second. And baud rate, number of the signals unit per second. Basic difference of both. I repeat, bit rate, the transmission of number of the bits per second, and baud rate, the number of the signals per second. The transmission of the number of the signals per second. And we studied data communications. Basically, data communication, it is the exchange of the information or data between the two devices via some form of the transmission media that is guided or unguided. For data communication to occur, the data communicating devices must be part of the communication system made up of the combination of the hardware and software. Basically, hardware, the physical equipment, devices, and the cables, or mainly the guided media components. And the software's program or software and logical representation uh, to solve the problem of the traffic, and the protocols, emphasis of the protocols. Uh, measurement of the measurement of effectiveness of the data communication systems depends on the four basically fundamentals. First is the delivery, second is the accuracy, timeliness, and data. Uh, these are the architecture of the communication system. Whole architecture of the communication system sends to the message to the receiver via the transmission medium. This data is basically message and follows the set of the rules that is also known as the protocols. Many rules, rule 1, rule 2, and the rule n. Components of the data communication systems. First is senders. Senders is the host person. They sends the message or data. Receiver receives the message. Or transmission media, it is the path to pass the message from sender to receivers. Transmission media or channels is categorized in two types, already studied in the previous class. Data message, protocol set of rules and regulations. They follow the systems. Data representation, basically data representation is the 5 types. Of 5 types or categories. First is text, numbers, images, audio, video. अगर डेटा प्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा प्रेजेंटेशन, तो ये 5 तरीके के होते हैं. पहला टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो. इसके अलावा कोई भी डेटा प्रेजेंटेशन का कोई तरीका है नहीं.
कभी भी मोबाइल फ़ोन में देखो तो या तो टेक्स्ट मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगी, ऑडियो होगी या वीडियो होगी, यही रहेगा। ये मेन कंपोनेंट है उसके या रिप्रेजेंटेशन का। फिर हमने डेटा फ्लो की बात कर रहे थे हम। वी वर टॉकिंग अबाउट द डेटा फ्लो। Data flow basically the transmission mode. First category is the simplex, second category is the half duplex, and third category is the full duplex. सिंप्लेक्स में क्या हो रहा था कि एक ट्रांसमीटर था और बाकी के बहुत सारे रिसीवर हो सकते हैं। एक रिसीवर भी हो सकता है, बहुत सारे रिसीवर भी हो सकते हैं, जो कि वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है और वो सब सुन रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टीवी ट्रांसमिशन होता है, जिस टीवी का होता है कि वो वहाँ पे आके दिखाई तो दे रहा होता है, हम देख रहे होते हैं, लेकिन टीवी का सेटअप बॉक्स से हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते सेंडर को। तो ऐसा जो डेटा फ्लो का मोड है, ट्रांसमिशन मोड, दैट इज आल्सो नोन एज द सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। सेकंड कैटेगरी इज हाफ डुप्लेक्स। Basically half duplex both are the senders or receivers, but one sender sends the message to receivers at any time, but second receivers they have the senders they send the another time. एक ही समय पे दोनों डेटा सेंड नहीं कर पाएंगे, एक भेज रहा होगा तो एक रिसीव कर रहा होगा, अगर दूसरा सेंड कर रहा है तो पहला वाला रिसीव करेगा। इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है, अगर एग्जांपल की बात करें तो वॉकी टॉकी होता है इसका एग्जांपल, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन बोर्ड का। ये सारी चीजें पढ़ी हैं हमने, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं जल्दी से। फुल डुप्लेक्स दोनों ही रिसीवर होंगे, दोनों ही ट्रांसमीटर या सेंडर होंगे, डेटा सेंड करेंगे, दोनों ही कर पाएंगे, एक ही समय पे दोनों कर पाएंगे। अगर फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल की बात करें तो मोबाइल फोन इसका एग्जांपल है, और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सैटेलाइट लॉन्चिंग, मिसाइल लॉन्चिंग, ये सारे फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल हैं। कनेक्शंस की बात कर रहे थे, टाइप ऑफ कनेक्शंस की दो तरह के थे। फर्स्ट कैटेगरी इज पॉइंट टू पॉइंट, मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो हम वन टू वन कम्युनिकेशन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन है मल्टी ड्रॉप कनेक्शन, मतलब एक सेंडर है, बाकी के रिसीवर्स हैं, वो किसी ना किसी नेटवर्क या किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू वो कनेक्ट हो रहे हैं। फिर हमने टोपोलॉजीज पिछले उसमें भी देखी थी, दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल टोपोलॉजीज, दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजीज। इस तरीके के ये यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे दिया हुआ। नेटवर्क भी देख लिया था, कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात कर रहे थे, मॉडल भी, लैन वैन मैन, ये सारी चीजें देखी। आज का जो टॉपिक है, टुडेस वी हैव द क्लास, द न्यू टॉपिक इज द प्रोटोकॉल्स। Basically, protocols it means rules and regulations, set of rules and regulations, मतलब protocols नियम कानून। Recording in progress. जो कि यहाँ नेटवर्क की बात कर रहे हैं। आज की क्लास में ये कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग का सिलेबस हो जाएगा। लास्ट 2-3 स्लाइड्स। तो प्रोटोकॉल्स जितने भी नियम कानून की बात करिए, कहाँ से डेटा सेंड होगा, कौन सा नियम कानून लगेगा, किस तरीके से होगा, क्या सारी चीजें। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप में देखते हो आप, उसमें आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वो भी एक प्रोटोकॉल्स है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन पे अलग अलग चैटिंग एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे मैसेंजर हुआ, व्हाट्सएप की बात हो ही गई, इंस्टाग्राम पे भी बातचीत होती है वो भी, या उसके अलावा भी टेक्स्ट मैसेजेस के कई सारे ऐप आते हैं। तो वो कौन से प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे, कैसे डेटा सेंड करेंगे, वो सारी चीजें इसी में आती हैं। तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज सिंटैक्स, सेकंड इज सेमेंटिक, और थर्ड इज टाइमिंग। टाइमिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द protocols. Syntax, basically syntax, structure or format of the data, meaning the order in which they are the presented. सिंटेक्स का सिंपली जो डेटा जा रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है। जैसे अभी हम डेटा
रिप्रेजेंटेशंस की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने देखे 5 मेथड्स थे या 5 तरीके थे या उसे रिप्रेजेंट करने के। पहला है टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। तो वही यहाँ पे फॉर्मेट की बात हो रही है, किस फॉर्मेट में वो डेटा सेंड हो रहा है, किस ऑर्डर में जाएगा, कौन सा टेक्स्ट है, अल्फाबेट्स है, वीडियोस है, इमेजेस है। वीडियो भी क्या होती है, वीडियो भी बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द इमेजेस। तो पहले कौन सी इमेज दिखाएंगे, दोबारा दूसरी कौन सी दिखाएंगे, फिर उसमें ऑडियो कहाँ दिखाना है, किस चीज पे दिखाना है। तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मेट होगा, दैट इज आल्सो नोन एज द सिंटैक्स। वही सिंटैक्स होता है। दूसरा सिमेंटिक। सिमेंटिक का सिंपल मतलब भी या मीनिंग भी होता है ईच सेक्शन ऑफ बिट्स। जो सेक्शंस जो बने होंगे अलग अलग, वो बेसिकली कंप्यूटर्स जो होते हैं या डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, वो जो इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उसे तो नहीं समझते हैं। वो कन्वर्जन किया जाता है, कन्वर्जन किस में किया जाता है, बिट्स में किया जाता है, और वो बिट्स वाली भाषा समझते हैं। तो ईच सेक्शंस उसके क्या बिट्स होगी, क्या मीनिंग होगा, सारी चीजें जो काम होता है वो सिमेंटिक्स वाले सेक्शन का होता है। तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज सिंटैक्स, सेकंड इज सिमेंटिक्स, थर्ड इज टाइमिंग। The term timing refers to characteristics when data should be sent and how fast they can be sent. एक मतलब डेटा भी सेंड हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें, फिर कितने समय में पहुंच रहा है, स्पीड पूरा उसी का तो खेल है पूरा। मतलब हमने कोई भी वेबसाइट एक्सेस करी, हम जैसे पहुंचे, कुछ माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में वो ओपन होके आ गई। मतलब डेटा ट्रांसमिट क्या टाइम रहा होगा जब हमने उसे रिक्वेस्ट भेजी और कितने समय में हमारे पास आ गई। It also known as the time, और पहले ही मैंने बताया टाइमिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स। हर चीज का, क्लासेस की बात कर रहे हैं, अगर 4 बजे क्लास है तो 4 बजे आना, या कोई भी चीज जॉब की भी बात कर रहे हैं तो टाइमिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर प्रोटोकॉल्स बेसिकली मीन्स सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन and combination of the three things. First is syntax, second is semantic, third is timing. Standards बेसिकली मीन्स स्टैंडर्ड, हर चीज का स्टैंडर्ड या ब्रांड बोल सकते हैं। कौन सी कंपनी बना के दे रही है, क्या ब्रांड है। फिर उन कंपनी जो बना के भी दे रही है उसके ऊपर भी ये कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि उस चीज को अप्रूव करता है, और उसे अप्रूव करेगा तो वो अपनी सील भी लगाएगा उसमें। जैसे अगर हम कपड़े भी पहन रहे हैं, कपड़े भी एक ब्रांड होगा कोई भी, वो भी कहीं ना कहीं से परमिशन लेंगे, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट होंगे गवर्नमेंट के, उससे जाके परमिशन लेंगे तब जाके वो नए मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। जो ब्रांड भी होंगे वो कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, क्या इंसानों की हेल्थ में उससे दिक्कत तो नहीं होगी, कैसी गर्म अगर मौसम है तो क्या कोई इम्पैक्ट तो नहीं दिखाएगा, ठंडा है तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं दिखाएगा, कोई एलर्जी तो नहीं होगी। इस तरीके जो कपड़े का जो ये सारे पैरामीटर होते हैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के पास में, और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट उसे देखने के बाद, उसे टेस्ट करने के बाद तब परमिशन देता है। वो स्टैंडर्ड उनके बने होते हैं, नियम कानून बने होते हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब ये मानक जो बने हुए हैं, इनमें अगर वो फुलफिल बैठ जाता है तब जाके वो परमिशन दी जाती है उसकी। तो उस मतलब वो कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स होता है कि बताएं। डी फैक्टो मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हो सकती है जो कि अपने परमिशन के थ्रू वो चीजें तो चलाने की कोशिश करते हैं, मैन्युफैक्चरर को देते हैं। कई कंपनीज होती हैं इस तरह। ज्यूरी मतलब बेसिकली गवर्नमेंट या लेजिस्लेटेड असेंबली से वो अप्रूव होके चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इस पर नहीं अभी जाना चाहते हैं। बस इसके स्टैंडर्ड्स में इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये कुछ कंपनीज हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेस बने होते हैं, जो बन गए हैं अभी तक, या जो नई चीज भी आएगी, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो अप्रूव करेंगे तभी उसी के बाद वो चीजें चल पाएंगी। चाहे वो IEEE हो, चाहे EIA हो, ANSI हो, CCITT हो, IT हो, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि उसे कि इसके जो मानक दिए होंगे वो मानने पड़ेंगे। मानक जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अपने जो नेटवर्क चल रहा है, 5G नेटवर्क चल रहा है, तो उसकी कोई ना कोई तो बैंडविड्थ होगी, कोई ना कोई स्पीड होगी, एक वायरलेस नेटवर्क है।
तो वो फिक्स स्पीड होगी कि इतने स्पीड तक वो परमिशन मिली होगी किसी भी कंपनी को सिम चलाने की कि इतने पे आप चलाइए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा और झेली भी है बहुत सारी कंपनी जो बंद हो गई हैं सेलुलर के उसमें। एयरसेल होती थी, यूनिकॉन और होती थी और भी बहुत सारी कंपनी हुई। तो ये मानक कौन बनाते थे? वो यही सारी कंपनी है जो बनाती हैं, जो गवर्नमेंट की हेल्प से सारी चीज़ें या वो चल रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये बस देती है कि अगर जैसे देखें पहला कि अ, सेकंड पहले देखते हैं बिट रेट ऑफ द सिग्नल इज़ 3000। किसी भी सिग्नल की इतनी बिट रेट दी है, मतलब इतने से ट्रांसमिट हो रहा है वो इतने। इफ ईच सिग्नल यूनिट कैरीज 6 बिट और हर एक सिग्नल 6 बिट लेके जा रहा है, तो व्हाट इज द बॉड रेट? तो बॉड रेट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द सिग्नल्स कितने? 3000 और ई सिग्नल कितने बिट लेके जा रहा है? 6। तो 3000 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 500 वॉट पर सेकंड। बेसिक्स न्यूमेरिकल्स। दूसरा यो एक टॉपिक है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ये होता है, मतलब समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो उसका ये है कि नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल्स टू एट द मेन सिग्नल्स। तो जो मेन सिग्नल होता है उसमें आके कोई अनवांटेड सिग्नल आके मिल जाए तो उसकी भी एक्यूरेसी को खराब कर देता है। लेकिन अब ये पता कैसे करें कि वो कौन सा सिग्नल है और कितनी फ्रिक्वेंसी का है और कितनी एक्यूरेसी उसने बर्बाद करी, कितनी एफिशिएंसी उसने बर्बाद करी। तो उसके लिए ये फॉर्मूले होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सिग्नल पावर मतलब जो सिग्नल भेजा जा रहा है कितनी पावर से भेजा जा रहा है और नॉइस की पावर क्या है, वो सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइस पावर। अगर वो उसकी यूनिट होती है बेल्स। बेल्स इसलिए होती है क्योंकि एक फिजिक्स साइंटिस्ट हुआ करते थे वेल्स नाम के उनके, उन्होंने बनाया और एक लैब भी है उनके नाम से, तो उन्हीं के नाम से वो यूनिट दे दी गई। ऐसे ही फिर जैसे ही मतलब फिर पूरा फॉर्मूला दे दिया तो डेसिबल्स हो गया, डीबी बोलने लगे। तो नॉइस की जो यूनिट भी होती है उसे मेजर किया जाता है, साउंड को मेजर किया जाता है तो उसकी यूनिट भी डेसिबल्स होती है। ये सारी चीजें कोई जरूरत की नहीं है, बस सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो ये होता है कि पूरे पहली चीज तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका ये काम होता है कि वो हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करता है, सीपीयू को रन कराता है, सारे काम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एग्जांपल है, मतलब वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उसका क्या काम होगा? उसका भी वही काम होगा कि हार्डवेयर को रन कराना है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करना। तो इतना हमने देखा था, वहां पर पढ़ा था। इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करना, पहले यूजेस क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी पढ़ाई जा रही हैं मुझे लगता है वो आपके कोर्स वर्क में भी इसलिए रखी गई है क्योंकि वो कोई नया कुछ नहीं है, ये आप रियल लाइफ में ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके रिसर्च से जोड़ते हुए बेसिक कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट है पूरा वो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हर चीज आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क यूज ही कर रहे हो, आप इंटरनेट मोबाइल में भी चलाते हो, बिना इंटरनेट के काम नहीं होता, इंटरफेस उसका यूज करते हो, उसके सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे होते हैं, सारी चीजें होती हैं। नेटवर्क भी होता है, एक ऑफिस में यूज कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूट में यूज कर रहे हो, तो कौन सा वो नेटवर्क होगा, लैन होगा, वैन होगा, मैन होगा, घर पे भी यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें। मतलब ये सब्जेक्ट रखा है तो बड़ा सोच समझ के बनाया गया होगा यूनिवर्सिटी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप यूज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में एक इंटरफेस दिखाई देता है, जैसे ऑन करते होंगे लिखा आता होगा कि उसका नाम ऊपर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज है उसमें तो विंडोज लिखा आता होगा, विंडोज मतलब वो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी के पास लाइनक्स होगा तो लाइनक्स आता होगा, यूनिक्स वाले होंगे यूनिक्स यूनिक्स आता होगा, किसी के पास एप्पल के होंगे तो उसमें मैक आता होगा।
तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब चलो ठीक है, लैपटॉप भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन होंगे। मोबाइल फ़ोन में हम बोलते भी हैं एंड्रॉइड फ़ोन है मेरे पास। तो एंड्रॉइड क्या है? व्हाट इज़ द एंड्रॉइड? एंड्रॉइड इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स to run the whole mobile phone. Without operating system, didn't run a smartphone or mobile phone. ओके, तो जो एंड्रॉइड फोन भी बोलते हैं मतलब एंड्रॉइड इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स या एंड्रॉइड इज दोज सॉफ्टवेयर टू इंटेक्ट द हार्डवेयर that also known as the system software. ये ऐसे बोल सकते हैं सिंपल। अगर मैं एग्जाम्पल लें, कार की बात करें तो हम सारी गाड़ियों को कार ही बोलते हैं, कार कार कार। ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो भी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके फिर कैटेगरी भी होंगे, उसके नाम पे चले चले जाएंगे, उसकी ब्रांड पे चले जाएंगे, किसकी है वो, होंडे की है, होंडा की है, महिंद्रा की है, कौन सी है गाड़ी, उसके भी पर्टिकुलर नाम होंगे, कौन कौन से नाम होंगे। ऐसे ही सिमिलर टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसकी भी कैटेगरीज होंगे, नाम होंगे। एंड्रॉइड हो सकता है, विंडोज हो सकता है, रास्पबेरी पाई के लिए रास्पबियन हो सकता है, मैक हो सकता है। इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके भी नए नए वर्जन आ आते रहते हैं, मॉडल्स आते रहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली इट इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जो हार्डवेयर मतलब मोबाइल फोन या लैपटॉप, उसके ऊपर जो इंटरफेस दिख रहा है, कलरफुल जो सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे यूजर देख रहा है, उसी इंटरफेस को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, रिसोर्स एलोकेशन, CPU मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मैनी अदर टास्क। सारी जिम्मेदारी होती है, सारे काम ये कर रहा होता है। अगर ये बंदा ना हो, मतलब ये सॉफ्टवेयर ना हो मोबाइल या लैपटॉप के अंदर या किसी भी डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, तो वो काम नहीं करेगा। तो फिर आपका ये सवाल हो सकता है, सर पहले के मोबाइल फोन भी तो होते थे, उस वो कैसे काम कर रहे होते थे? उनके अंदर भी कुछ कैमरे वाले आ गए थे, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। उनसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बोला ही नहीं जाता था, उसे सॉफ्टवेयर बोलते थे, जावा फोन बोलते थे। लेकिन काम ऐसे होता था, इसी तरह का सॉफ्टवेयर होता था, जिसकी जिम्मेदारी या काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज के लिए होता है, सारे जो काम, जो भी प्रोसेस, गाना सुनना, फोटो खींचना, ये जितने भी काम होते हैं, कौन सी प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे रन होगी, वो सब ये देखता है सॉफ्टवेयर, या ये सिस्टम देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स एलोकेशंस, एलोकेशंस के एक मोबाइल फोन के साथ में एक बायोमेट्रिक्स एक स्कैनर भी लगा देते हैं, जिसमें अंगूठा लगा के वो सिम दे रहे होते हैं, या यूएसबी भी लगा दो जिससे डेटा ट्रांसफर। तो रिसोर्स एलोकेट भी कर रहा होता है वो। और भी चीजें, और भी रिसोर्सेस भी दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेस भी होते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस भी होते हैं। सीपीयू मैनेजमेंट, पूरा उसका प्रोसेसिंग यूनिट को किस तरीके से मैनेज करना। फाइल मैनेजमेंट, वो भी इसी का काम होता है। जो फोल्डर बना पाते हो आप, उसके अंदर फोल्डर में फोल्डर 1 फोल्डर 2 या सारी चीजें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से बना पा रहे हो। या जो मैं पीपीटी भी बना के लाया हूँ, पीपीटी इसलिए बन पाई है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम था मेरे लैपटॉप में, तब जाके मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, तब उसमें जाके मैं ये काम कर पाया। अगर मेरे में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी करके सॉफ्टवेयर जो है जिससे मैं पीपीटी बनाता हूँ, वो नहीं डाल पाते। इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर पाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Purpose of an operating system is to provide an environment in which a user can execute program in convenient and efficient manner. Convenient and efficient manner, वही चीज सब मैनेज करना, सारी चीजें।
इसमें भी देखो, ये यहाँ पे डायग्राम में देखो, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके ऊपर सारी चीजें हैं, चाहे कंप्यूटर के गेम्स हो, इंटरनेट ब्राउजर्स हो, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। तो सारे काम पूरा। अब इसमें अभी तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक लाइन पड़ी, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, और उसके बाद इसका क्या होता है, ये भी इंश्योर करता है, ये यहाँ से समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मैंने एग्जांपल भी दिया है, एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड का या पीपीटी का। एमएस पीपीटी इज ऑल्सो नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो उसमें कब काम करेगा, तब उस वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पे इट इंश्योर इट्स ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर एफिशिएंट। OS allows smooth functioning, providing a stable and consistent environment for other software to be executed. सारे काम मतलब जिम्मेदारी सी सॉफ्टवेयर की होती है, और ये आप यूज करते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है। अभी पूरा ऐसे देखते आ रहे हो, काम करते आ रहे हो, बहुत सालों से मोबाइल फोन सभी चलाते हैं। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि दिस इज द सिलेबस ऑफ माय सब्जेक्ट और कोर्स वर्क। तो डिटेल में तो बात करनी पड़ेगी, वो करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। एक अगर कंप्यूटर सिस्टम्स का अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सॉरी, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेक्शंस। फर्स्ट इज यूजर्स। यूजर्स मतलब ये चला रहा होता है, पीपल हु आर द यूजिंग द कंप्यूटर्स। हम चला रहे हैं तो हम यूजर हैं। सेकंड कैटेगरी इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो सामने वहां पे दिख रहे होते हैं स्क्रीन पे, कंपाइलर्स, डेटाबेसेस, गेम्स, वीडियो प्लेयर्स, ब्राउजर्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑल्सो नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड कैटेगरी इज द सिस्टम प्रोग्राम, जैसे सेल्स, एडिटर्स एंड कंपाइलर्स, और भी कई सारे कंपाइलर्स होते हैं, या ट्रांसलेटर्स, या हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए भी और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रीड ओनली मेमोरी के अंदर होते हैं। बहुत सारे सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। यह सिस्टम प्रोग्राम ऑल्सो नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड अनदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग systems. Operating system basically intermediate, it is the interface to interact the hardware with the users. या ऐसे बोल सकते हैं, स्पेशल प्रोग्राम which act as an interface between user and hardware. यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम। लास्ट कंपोनेंट इज द हार्डवेयर। हार्डवेयर सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, ये सारी चीजें। तो ये सिंपल एक रिवाइज किया है, हमने पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, क्या फंक्शंस होंगे। एक लाइन में अभी हम डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि कैसे प्रोसेस मैनेज, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इनका मतलब क्या है या कैसे काम करेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेसेस within our systems, which includes process creation, scheduling, and termination. It further encompasses process synchronization and deadlock. पूरा प्रोसेस, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट का बेसिकली ये मतलब है मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। आपने सुना होगा, जैसे एक मोबाइल फोन में कई सारे काम कर सकते हो। कॉलिंग पे बात भी कर पा रहे हो, तो वो गेम भी खेल सकते हो, उसमें इमेजेस भी देख सकते हो, गैलरी में फोटोज जो भी है वो सारी चीजें।
तो इतने सारे काम कॉल भी चल रही है। ये सब काम जो कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? उसका सीपीयू कर रहा होगा, प्रोसेसर कर रहा होगा। प्रोसेसर तो एक हार्डवेयर डिवाइस है या मशीन है। तो उसे कौन काम दे रहा होगा, कौन मैनेज कर रहा होगा? जो मैनेज कर रहा होता है वो सारी चीजों को कैसे शेड्यूल कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस जाएगी, कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो वो खत्म होगी वहां से। बहुत सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। उस सेक्शंस को बोला जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा सेक्शन या दूसरा फंक्शन है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट उसकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, या हार्ड डिस्क भी होती है। कि एक प्रोसेस का काम खत्म हो गया वो हार्ड डिस्क में भेज दी, और जो प्रोसेस को हम चलाना चाह रहे हैं, कोई गाना चलाना चाह रहे हैं, गाना कहाँ होगा? किसी फोल्डर में होगा। और फोल्डर कहाँ होगा? किसी ना किसी मेमोरी के अंदर होगा। तो वहां से प्रोसेसर तक ले जाना या वहां से वापस पहुंचाना, बहुत सारा काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके अलावा भी इट अलाउस द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। एलोकेशन मतलब वहां पे मेमोरी के अंदर लेके आना या मेमोरी के अंदर से निकालना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। क्या देखना चाह रहे हैं, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है या यूजर्स क्या चाहता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ensure the optimal uses of the RAM in respect to technique that involve paging, segmentation and virtual memory are employed। मतलब ये टेक्निक होती है जो कंप्यूटर साइंस में बड़े रिसर्च लेवल की होती हैं। बेसिकली मैं इसका थोड़ा सा ऊपर का ये चीजें समझाता हूँ कि अब जैसे कि किसी की मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले पिछली कुछ क्लासेस में रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ रहे थे, तो मैंने ये बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का ये काम होता है कि वो प्रोसेसर होता है, वो हार्डवेयर के साथ सॉरी हार्ड डिस्क के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, तो वो इंटरेक्ट किससे करेगा? रैम से करेगा। तो हार्ड डिस्क पहले कोई भी प्रोसेस होगी रैम के पास भेजेगी, रैम फिर प्रोसेसर के पास, तब जाके वो चलेगा। लेकिन रैम मान के चलो कि 2 GB की है। पहले बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास फोन होंगे 2 GB रैम होगी, लेकिन उसमें तुम मेमोरी वो सॉरी मूवी देख रहे हो, मूवी है 4 GB की, तो वो तो रैम के अंदर आ ही नहीं पाएगी। तो वो कैसे चलाओगे, कैसे उसे? लेकिन तब भी चल जाती है वो। तो वो चलती कैसे है, उसे कैसे सेगमेंटेशन प्रोसेस काम कर रहा होता है, पेजिंग प्रोसेस काम कर रहा होता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे चलाने के लिए वो चलाता भी है, वो भी एक मेमोरी मैनेजमेंट में का कॉन्सेप्ट होता है। फाइल मैनेजमेंट के फोल्डर बनाना या फोल्डर बनना, या एग्जांपल बताता हूँ फाइल मैनेजमेंट का। जैसे आपने 5 फोल्डर बनाए, तो 5 फोल्डर में एक फोल्डर ए नाम से बनाया, एक एल नाम से बनाया, एक एम नाम से, एक और कोई ले लिया आपने। तो वो अपने आप आपको करने की जरूरत नहीं होती, एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं। तो एक सीक्वेंस में आना या फोल्डर कैसे मैनेज होंगे, फोल्डर क्या होता है? फाइल्स ही होती हैं। वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। डिवाइस मैनेजमेंट, हार्डवेयर के कौन सी कमांड कहाँ से आ रही है, आपने कीबोर्ड से एक बटन दबाया, वो एक मॉनिटर पे जाके दिखेगा, स्क्रीन पे जाके दिखेगा, तो वो कैसे हुआ, वो भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो मतलब अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े थे, तो मैं ये समझ है काम करता है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल के लिए इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए भी कई सारी प्रोसेस, कई सारे वो भी वहीं से चीजें होती हैं। कभी पासवर्ड डालना चाहते हो, कौन कहाँ से वो परमिशन मिलती है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। क्या एक्सेस करना है, किस क्या नहीं करना है, मोबाइल फोन में भी पासवर्ड डालना है, पासवर्ड रखना है।
द सिक्योर एक्सेस कंट्रोल के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका GUI UI यूजर इंटरफेस, जो ऊपर दिख रही होती है स्क्रीन पर, जो इंटरफेस दिख रहा है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या वो प्रोवाइड करता है। तो ये फंक्शंस होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके काम होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो अभी हमने जो देखा, पहले देखा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि it is the interface between the user and the hardware. It is responsible for the execution all the processes, resource allocation, CPU management, file management and memory other data। और उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या होता है उसमें। यूजर्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स एंड आल्सो नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम प्रोग्राम्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो known as the system softwares, and last is the hardware and functions of the operating systems. First is process management, second is memory management, third is file system management, fourth is device management, fifth is security and access control, and last is user interface. It provides the user interface. And we are talking about types of operating systems. इसके कई सारे प्रकार होते हैं, इनकी हम एक एक करके बात करेंगे। पहला अगर बात करें सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अभी ऐसे ही ये एक बना दिया, वैसे अलग अलग कैटेगरीज हैं या इसके नंबरिंग भी होगी। तो पहला सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, multi-processing operating systems, real-time operating system, distributed operating system, network operating systems, and multitasking operating system. तो 8 टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये भी पता चलेगा कि मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम्स या एंड्रॉयड जो हम बोलते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कैटेगरी में आता होगा, एक ATM मशीन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस में आता है, एक सर्वर मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, एक नासा या इसरो के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में आएगा, एक बैंक के पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सी कैटेगरी में आएगा और वो किस तरीके से काम करते हैं। ये चीज तो हम देख ही रहे होते हैं, यूज भी कर रहे हैं, ATM सब लोग यूज कर रहे हैं, तो वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे ट्रांजेक्शन होता है, तो ये सब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेनली एग्जीक्यूट जॉब्स मतलब टास्क, जॉब टास्क इन बैचेस without user interaction during executions. Early system used in mainframes examples, basically बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें क्या था कि या ऐसे भी बोल सकते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज द सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि जो पहले आएगा उसका पहले काम हो जाएगा, जो बाद में आएगा उसका बाद में काम होगा, या जो पहले आया वो लाइन के पहले लगा दिया, फिर दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया। मतलब ऐसा सिस्टम जो एक बार में एक ही टास्क कर पाता था, मतलब सिंगल टास्किंग सिस्टम्स। तो उसी सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो शुरुआत में जो बनाया या पहले लॉन्च किया वो IBM कंपनी थी, जिन्होंने अपने कंप्यूटर्स पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम रखा, जिसमें बैच प्रोसेसिंग सिस्टम उसका नाम रख दिया। इसके एग्जाम्पल भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि
सेंसर्स इंटीग्रेशन देखा होगा आपने, या सेंसर्स के लिए जैसे किसी लिफ्ट में गए आप, वहां जाके बटन दबाया कि फोर्थ फ्लोर पे जाना है, वो पहुंच जाएगी। तो फोर्थ फ्लोर आपने पहले सेट कर दिया, तो उसके बाद कोई बाहर हो या पीछे हो या ऊपर नीचे किसी भी फ्लोर पे कोई कितना भी बटन दबाता रहे, लेकिन पहले वो टास्क करेगी वो लिफ्ट जो पहले दिया गया है। तो उस मशीन में उसका जो भी सिस्टम बनाया वो भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक बार में एक ही काम। दूसरा एग्जांपल एसी का हो सकता है कि आपने पहले जो मतलब सेट कर दिया उस हिसाब से वो चलना शुरू हो गया, तब तक वो चलेगा, तब तक आप चेंज नहीं करोगे। तो ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मतलब एप्लीकेशंस हैं जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। Second category is time sharing operating systems. Time sharing operating systems basic, basically it allows multiple users to access the computer simultaneously while sharing the CPU time. मतलब मल्टीपल यूजर्स एक्सेस एक ही कंप्यूटर को कर सकते हैं, और उसके जो सीपीयू टाइम जो होगा वो शेयर कर दिया जाएगा कि कौन सा अलग अलग यूजर्स के पास में। इसका एग्जांपल ये ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करता, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ कि साइबर कैफे आपने देखे होंगे, उनके पास एक कंप्यूटर होगा, मतलब एक सीपीयू होगा, मल्टीपल डेस्कटॉप लगे होंगे, मॉनिटर्स, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला डाल दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी होते हैं, विंडोज के पास भी ये फैसिलिटीज होती हैं। तो वो 10 लोग अपना इंडिविजुअल काम करते रहते हैं, कोई एमएस वर्ड चला रहा है, कोई एमएस पेंट चला रहा है, कोई और कुछ चला रहा है। ये पहला एग्जांपल जो था उसका यूनिक्स ने दिया था, पहला सिस्टम। अब तो कई सारे सिस्टम्स, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगे हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है। तीसरी कैटेगरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Distributed operating systems, it manages a group of independent computers and makes them appear as a single system to users. Enables resource sharing and improve reliability. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एग्जांपल से पहले बात करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उसके 5 ब्रांच हैं। 5 ब्रांच एक ही लोकेशन पे नहीं है, अलग अलग लोकेशन पे। मान के चलो कि एक दिल्ली में है, एक बेंगलोर में है, एक हैदराबाद, एक चेन्नई, एक मुंबई। सभी आपस में किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। वाइड एरिया नेटवर्क हम पढ़ के आए हैं, तो उससे वो कनेक्ट कर दिया गया। तो बेंगलोर में अब वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सर्वर्स, अलग अलग मशीन रखी होंगी। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आया कि वो प्रोजेक्ट बहुत टीम कर रही है बेंगलोर वाली, लेकिन उसका स्टोरेज या उसकी मेमोरी या उसका सिस्टम्स रखा हुआ है बेंगलोर। मतलब हैदराबाद वाली टीम काम कर रही है और उसका बेंगलोर या दिल्ली में रखा हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि बेंगलोर वाली जो टीम है जो काम कर रही है वो दिल्ली आ जाए पूरी, तब आके करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो वहीं पे बैठ के कर पाती है क्योंकि वो नेटवर्क से कनेक्ट है। और वहाँ की जो मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो अलाउ करेगा उस टीम को काम करने के लिए। उस तरीके का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जरूरी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे बैठ के काम करना। इसी सिस्टम की वजह से
वर्क फ्रॉम होम भी पॉसिबल है। Fourth category is real-time operating systems. Real-time operating systems designed for the system requiring immediate response. जल्दी काम मतलब जैसे ही बटन दबाया या क्लिक किया, कोई डिले होना ही नहीं चाहिए, कोई नैनो सेकंड नहीं, कोई माइक्रो सेकंड नहीं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए बहुत होते हैं, जो मशीन्स देखी होंगी बड़ी-बड़ी, उनमें हार्ट बीट चल रही होगी, वो सारी चीजें। तो वो ऐसे थोड़ी होगा सेंसस डेटा बता रहा है वो थोड़ा समय ले, नहीं बिल्कुल नहीं, एक्यूरेट रियल टाइम। रोबोट्स के लिए ऑटोमोटिव कंट्रोल्स और भी बहुत सारे इसी कैटेगरी में से थोड़े एडवांस लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम, मिसाइल लॉन्चिंग या रॉकेट लॉन्चिंग, उसमें भी आरटीओएस होते हैं। उनका देखिए पूरा सिस्टम उनके वो पब्लिकली यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट वाला ही होता है। इसके अलावा और भी कैटेगरी है, लेकिन आज के लिए 4 कैटेगरी। पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सेकंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे क्लास में। तो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, और जो नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं अगले मतलब नेक्स्ट 4 एनओएस, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।